आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के रिश्ते और अच्छे होंगे। और मैं अपने आसाम के लोग जो देख रहे हैं, उनको कहना चाहूँगा, आप लोग अमेरिका में और अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करिए। पढ़ने के लिए आप लोग आते हैं, और भी लोग आए, और आगे हमारे युवा लोग हैं, उनके लिए और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो एक्सप्लोर कीजिए। सारा इंडियन वोट जो है बाइडन को जाना चाहिए, तो उसके लिए हमने बहुत प्रचार किया। 80% उससे ज़्यादा अमेरिकन भारतीयों ने जो बाइडन और कमला हैरिस को सपोर्ट किया। 15 साल से जानता हूँ, एंड काफ़ी अच्छा हमारी वर्किंग फ्रेंडशिप है। ट्रंप ने मोदी जी का जो प्यार और जो सपोर्ट था, उसका सिर्फ फायदा उठाया उन्होंने। আপুনি গুৱাহাটীতে জন্ম হৈ ডাঙৰ দীঘল হোৱা অসমবাসী আৰু গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে কি ক'ব? सबसे यही कहूँगा, জয় আই অসম। মই অসমত পঢ়া-শুনা কৰিছিলোঁ, আৰু গ্ৰু আপ ইন আছাম, গুৱাহাটী, went to কটন কলেজ। স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ অনুষ্ঠান। আজিৰ মোৰ বিশেষ অতিথি আমেৰিকাৰ নিৰ্বাচনত অসমৰ সংযোগ, আৰু এই সংযোগ কি? জো বাইডেন আৰু কমলা হেৰিছৰ বিজয়, আৰু এই বিজয়ত মই দেখুৱাম যে কেনেকৈ ভাৰতৰ অসমৰ এটা পৰিয়াল তেওঁলোক এই সমগ্ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল। এই প্ৰচাৰ অভিযানৰ সৈতে জড়িত হৈ থকাৰ পাছত যেতিয়া বিজয় সাব্যস্ত কৰিলে, তাৰপিছত তেওঁলোকে আনন্দ স্ফূৰ্তি কৰিলে, আৰু এই ব্যক্তিজন এই পৰিয়ালটোৰ সৈতে আমি এতিয়া সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ পোনপটীয়াভাৱে ছান ফ্ৰান্সিস্কো কেলিফৰ্ণিয়াৰ পৰা। আৰু মই প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ অজয় জৈন ভুটৰীয়া ডাঙৰীয়া, আপোনাক মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এই বৃহৎ বিজয়, কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ ফৰ দিছ হিউজ ভিক্টৰী। আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছে। আপোনালোক আমি দেখিছোঁ ইতিমধ্যে আলোকচিত্ৰত দেখিছোঁ, আপুনি পত্নী সকলোৱে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিলে। চ' এজ এ huge victory and congratulations from Time It. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। আপুনি মই অসমীয়াতে আৰম্ভ কৰিছোঁ, যিহেতু আপুনি গুৱাহাটীতে ডাঙৰ দীঘল হৈছে, গুৱাহাটীৰ প্ৰায় আপুনি পঢ়া শুনা কৰিছে, কটন কলেজৰ পৰা আপুনি পঢ়া শুনা কৰিছে। আপোনালোক এই নিৰ্বাচনৰ সৈতে জড়িত আছিল। আমি কেইখনমান ফটো দৰ্শকসকলৰ সৈতে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ, পৰিয়ালৰ সৈতে জো বাইডেনৰ ফটো। আমি যদি ফটোকেইখন এবাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাব পাৰোঁ, আৰু নিজে অজয় ডাঙৰীয়া, নিজে তেওঁৰ পত্নী, তেওঁৰ 2 পুত্ৰ, এই পৰিয়ালটো জড়িত হৈ আছিল সমগ্ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানৰ সৈতে। আৰু এই যি আলোকচিত্ৰসমূহ আছে, বা এই যি আলোকচিত্ৰসমূহ আছে, এইসমূহ এতিয়া চৰ্চাত আহিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ এই ফলাফল ঘোষণাৰ পিছৰে পৰা। আৰু প্ৰেছিডেণ্ট ইলেক্ট জো বাইডেন, ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট ইলেক্ট কমলা হেৰিছ, তেওঁলোকৰ সৈতে কেনেদৰে প্ৰচাৰ অভিযানত জড়িত হৈ আছিল। মই এবাৰ ভুটৰীয়া ডাঙৰীয়াৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে কেনেকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানটোৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছিল, আৰু কেনেদৰে আপোনালোক আগবাঢ়ি গৈছিল? ধন্যবাদ। খুব ভাল লাগছে। মই অসমত পঢ়া-শুনা কৰিছিলোঁ, আৰু গ্ৰু আপ ইন আসাম, গুৱাহাটী, went to কটন কলেজ। তাহলে এই খুব ভাল লাগছে আজকে। मैं जो बाइडन काफ़ी 15 साल से जानता हूँ, एंड काफ़ी अच्छा हमारी एक वर्किंग फ्रेंडशिप है। उनके साथ मैंने मैं खूब व्हाइट हाउस से खूब जतिया বারাক ওবামা এন্ড বাইডেন প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তাকে তার সঙ্গে কার্য করছিল। তো আমি জানলাম যে বাইডেন শুড বি দ্য নেক্সট প্রেসিডেন্ট অফ ইউনাইটেড স্টেটস। সো for last 4 years and especially for the last 2 years, দুই সাল আমি ক্যাম্পেইন কার্য করছি, especially fundraising, raising the money needed to campaign. We worked on that. But আমার 2 মিলিয়ন ইন্ডিয়ান আমেরিকান আছে এখানে আমেরিকা থেকে, স্পেশালি ইন দ্য ব্যাটল গ্রাউন্ড স্টেটস অফ উইসকনসিন, মিশিগান, পেনসিলভেনিয়া। तो আমার একটা স্ট্রেটেজি ছিল যে এইবার सारा इंडियन वोट जो है बाइडन को जाना चाहिए। तो उसके लिए हमने बहुत प्रचार किया। আমরা একটা মিউজিক্যাল ভিডিও বানালো, ওই ভিডিওতে মানে লোক বাঙালি, আসামিজ, গুজরাটি, তামিল, তেলুগু মেসেজ দিলে যে ভোট ফর বাইডেন। তারপরে we did lot of graphics in all 14 languages including Assamese. There's a good number of Assamese population in Michigan and all the other states. So we reached out to them in Assamese, in Bengali, in Tamil, Telugu, and to support Joe Biden, and it worked very well. আৰু আজিৰ এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আমি দেখিলোঁ যে বাইডেন আজি বিজয়ী হৈছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আপুনি হিন্দীত বা ইংৰাজী ভাষাটো উত্তৰ দিলে হ'ব, যিহেতু আপুনি দীঘলীয়া দিন ধৰি প্ৰায় 22-23 বছৰ ধৰি আপুনি আমেৰিকাত আছে, পৰিয়ালসহ তাত বসবাস কৰিছে।
प्रेसिडेंट इलेक्ट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट अपनी एटिया लग पाइसे ने आपसे अभी मुलाकात हुआ है कि नहीं हुआ है? ये जो विक्ट्री है, रिजल्ट्स आया है, उसके बाद उन दोनों से आप मिले हैं? अभी उन दोनों से विक्ट्री के बाद नहीं मिले, कुछ दिन पहले मिले थे, लेकिन विक्ट्री के बाद अभी नहीं मिले क्योंकि कोरोना वायरस के कारण हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। तो और मतलब अभी कोरोना वायरस अमेरिका में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, जैसे इंडिया में फैला हुआ है। तो हम लोग फ्लाइट और फ्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी विक्ट्री के बाद नहीं मिले हैं। लेकिन विक्ट्री से पहले कुछ दिन जो कोरोना वायरस शुरू होने से पहले जो बाइडेन की वाइफ डॉक्टर जिल बाइडेन हमारे घर आई थी और हमने उनके लिए एक अच्छा इवेंट किया था। तो उनको बहुत अच्छा लगा था और उनको हमने एक गणेश जी की मूर्ति भी प्रेजेंट की थी कि भी उनकी सारी बाधाएं दूर हो जाए। तो वैसे तो रेगुलरली मिलते रहते हैं, लेकिन अभी विक्ट्री के बाद अभी नहीं मिल नहीं पाए मिला। हैं। भारतीय जो समुदाय है उन लोगों ने बाइडेन को वोट दिया है, 100% वोट दिया है या मेजोरिटी मिला है? ट्रम्प भारत आया था, नरेंद्र मोदी ने सपोर्ट किया था, उसके सपोर्ट में इंडिया में प्रोग्राम भी किया था। उसके बावजूद भी मोदी जी खुद गया था अमेरिका, उसमें भी प्रोग्राम पे हिस्सा लिया था। उसके बावजूद भी देखा गया है कि भारतीय समुदाय ने बाइडेन को, कमला हैरिस को सपोर्ट किया है, ज़्यादातर मात्रा में सपोर्ट किया है। और इसका कारण क्या है? व्हाई द इंडियंस और असमीज पीपल, ऑल द इंडियंस और साउथ एशियंस हैज दे हैव सपोर्टेड बाइडेन एंड हैरिस? देखिए 80, आपने सही कहा, 80% उससे ज़्यादा भारतीयों ने, अमेरिकन भारतीयों ने जो बाइडेन और कमला हैरिस को सपोर्ट किया, मतदान दिया है। इसका और ये भी सही कहा कि ये इंडिया इतना बड़ा हाउडी मोदी इवेंट और गुजरात में इवेंट किया था। लेकिन ट्रम्प ने मोदी जी का जो प्यार और वो जो सपोर्ट था उसका सिर्फ फ़ायदा उठाया। उन्होंने सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज़ किया। लेकिन जब आता है कि H1 वीज़ा सस्पेंड कर दिया, जो बहुत सारे भारतीय अमेरिका में आते हैं H1 वीज़ा के थ्रू काम करने के लिए, वो H1 वीज़ा सस्पेंड कर दिया। उन्होंने ग्रीन कार्ड का बैकलॉग इतना इंक्रीज कर दिया कि 70 से 80 साल अभी लगेंगे किसी को ग्रीन कार्ड मिलने में, जो लाइन में लगे हुए हैं। उन्होंने भारत के साथ जो भारत का ट्रेड का मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN था, वो ख़त्म कर दिया। उन्होंने भारत को एक बड़े डिबेट स्टेज में कहा कि इंडिया इज फिल्दी। तो इस तरह की बातें एक दोस्त दूसरे दोस्त के बारे में नहीं कहता, दूसरे, और इस तरह से फॉरेन पॉलिसी नहीं होती है। जबकि जो बाइडेन ने क्लियरली कहा कि जब वो आएंगे तो H1 वीज़ा वापस रिन्यू करेंगे, रीइंस्टॉल करेंगे, ग्रीन कार्ड का बैकलॉग क्लियर करेंगे, जल्दी ग्रीन कार्ड मिलेंगे। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि चाइना जो भारत के अगेंस्ट में एग्रेशन कर रहा है, उसके उसके भारत के साथ खड़े रहेंगे मजबूती से। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका एक गहरे मित्र है और गहरी और बहुत क्लोजली काम करेंगे। दोनों को एक गहरा संबंध होगा क्योंकि दोनों की नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है कि भारत और US क्लोजली काम करें। उन्होंने ये भी कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो हो रहा है उसके अगेंस्ट में है और वो भारत के साथ खड़े हैं। जो और इंडिया के साथ ट्रेड डील वो और इंक्रीज करेंगे। आपको याद होगा ओबामा और बाइडेन ने $500 बिलियन की ट्रेड डील की फाउंडेशन रखी थी इंडिया के साथ, और वो बाइडेन और कमला हैरिस उसको आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे और नए क्षेत्र हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, जहाँ पे मेडिकल क्षेत्र है। जो अमेरिका पहले दवाइयाँ चाइना से बनवाता था, उसमें अपॉर्चुनिटी है कि भारत का जो प्रोडक्शन है और अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है साथ में मिलके और नए करें। तो आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के रिश्ते और अच्छे होंगे। और मैं अपने आसाम के लोग जो देख रहे हैं, उनको कहना चाहूँगा, आप लोग अमेरिका में और अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करिए। पढ़ने के लिए आप लोग आते हैं, और भी लोग आए, और आगे हमारे युवा लोग हैं उनके लिए और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो एक्सप्लोर कीजिए। ये देखा गया था कि जो बाइडेन, ट्रम्प ने भी प्रचार किया था, प्रचार या प्रचार बोले कि बाइडेन विल बी सपोर्टिंग चाइना मोर एंड चाइना से साथ उसका रिश्ता अच्छा है और इंडिया को बेनिफिट नहीं मिलेगा। हालांकि आपने यू हैव रेज सम ऑफ द वाइटल इशूज, दोज इशूज आर वेरी कंसर्न टू इंडिया बिकॉज H1 वीज़ा इज इम्पोर्टेंट। मोस्ट फेवर्ड नेशन जो था टैग, वो भारत से हटाया गया था। ट्रेड में ये बड़ा नुकसान है भारत के लिए, क्योंकि भारत का व्यापारी जो है, जिन लोगों का US के साथ रिश्ता है, उन लोगों को ज़्यादा टैक्स या बाकी सब में भी एक प्रॉब्लम आया है। सो आपको ये लगा था कि ट्रम्प से
बाइडेन या कमला हैरिस भारत को ज़्यादा फेवर करेगा? ऑब्वियसली आज आप देख लीजिए ओबामा के, जब ओबामा और बाइडेन प्रेसिडेंट थे तो ओबामा के साथ बहुत अच्छा रिश्ता हुआ मोदी जी का भारत का। और वो आगे रिश्ते और आगे बढ़ेंगे, काफ़ी ट्रेड डील्स। और इनफैक्ट बाइडेन ने ये भी कहा कि भारत के लिए जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए भारत के लिए सपोर्ट करेंगे। तो इतना सब कुछ खुल के हमने एक एजेंडा मैनिफेस्टो बनाया जो भारत के और भारतीय के लिए हो। जो यहाँ पे लोकल भारतीय बसे हैं उनके लिए भी बाइडेन ने कहा कि आज हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में काफ़ी हेट क्राइम्स हो रहे हैं। ट्रम्प और बाकी उनके जो लोग हैं वो नफरत की भावना फैला रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए वो फंडिंग देंगे और सिक्योरिटी देंगे। इसके अलावा भारत के जो भारतीयों के जो स्मॉल बिजनेसेस है जो आज बंद हो रहे हैं कोविड के कारण, उसको सपोर्ट करेंगे। तो हाँ, तो अमेरिकन भारतीय के लिए और भारत के साथ रिश्ते दोनों ही बढ़ेंगे। और जहां तक चाइना की बात है, आज जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पूरा बदल चुका है और अमेरिका के हित में और भारत के हित के लिए, दोनों के लिए ही चाइना के चाइना को मैनेज करना जरूरी है। तो बाइडेन ने चाइना के अगेंस्ट में बहुत कुछ कहा और कहा कि वो सख्त पॉलिसीज लेके आएंगे। और वो चाइना अगर कुछ भी जो अपने बॉर्डर पे कंट्रीज के साथ प्रॉब्लम्स कर रहे हैं तो वो भारत के साथ खड़े हैं उसमें। तो ये पूरा क्लियर है कि वो भारत के साथ है चाइना के एग्रेशन के अगेंस्ट में। कमला हैरिस के जो रूट्स है वो भी भारत से जुड़ा हुआ है, लेकिन उनका जो कश्मीर मुद्दे पे उसका जो व्यूज़ है या कहाँ पे हमने देखा है वेरी रिसेंटली ये बहुत चर्चा भी हुआ है, वो इतना एनकरेजिंग नहीं है। सो क्या आपको लगता है कि कमला हैरिस विल ऑल्सो बी सपोर्टिंग इंडिया एज ए फेवर्ड नेशन और एज ए फ्रेंड नेशन? देखिए बहुत सारी डिस इन्फॉर्मेशन है। कमला हैरिस, आज हमारे यहाँ की सारी अमेरिकन लोग खुश हैं कि एक कमला हैरिस की माँ श्यामला गोपालन चेन्नई से थी और एक इंडियन अमेरिकन की डॉटर जो है वो आज वाइस प्रेसिडेंट बन रही है। तो आज हम अपने बच्चों को कह सकते हैं भाई आप लोग भी अगर मेहनत करोगे तो आप भी कल प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हो। अब वो इंडियन ओरिजिन की आप अपने गर्व से कह सकते हो कि आप इंडियन अमेरिकन हैं। तो कमला हैरिस जो है वो रहेंगी। मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनली 370 जो और कश्मीर जो है इंडिया का इंटरनल मुद्दा है। और जो भी स्टेप्स इंडिया की गवर्नमेंट ले रही है वो वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ के सिक्योरिटी, लोगों की सिक्योरिटी के लिए, वहाँ के लोगों के खुशहाली आए जीवन में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए जो भी ज़रूरी है वो ले रही है और वो कर रहे हैं। और जहाँ तक एनआरसी और सीएए का मामला है, मैंने तो हमेशा यही अपने यहाँ में कैंपेन में टीम में कहा कि मैं आसाम में पला बड़ा हूँ। मैंने देखा है वहाँ पे कैसे जब उस जमाने से जब आंसू का आंदोलन होता था, एजीपी का आंदोलन होता था और इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में डिस्कशंस और आंदोलन होते थे, वो सब मैंने जब छोटे से बड़ा हुआ देखा है। तो मैंने समझाया है कि ये एक ज़रूरी स्टेप है जो इलीगल इमिग्रेशन को नियंत्रण में लाने के लिए ज़रूरी स्टेप है जो भारत सरकार ने लिया है। और वो केवल कभी कभी क्या होता है कि बड़े बड़े ये जो स्टेप्स और ये जो स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करने का थोड़ा और तरीका बेटर हो सकता है, चाहे वो 370 हो, नोट बैन हो या कुछ भी हो, तो वो चीज़ बेटर हो सकती है। उसका पीआर जो है, ताकि उसकी जो सही इंफॉर्मेशन है, आज अमेरिका में भी सबके साथ हमारे जो एम्बेसीज हैं उनको शेयर करनी चाहिए ज़्यादा, ताकि यहाँ के जो कांग्रेसमैन है और सेनेटर्स हैं उनको समझ में आ सके कि वहाँ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। वो चीज़ अगर ठीक से शेयर नहीं करी जाती है, तभी लोग तरह तरह की डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। वही इस मामले में हुआ। सो आपको लगता है कि कमला हैरिस जो बाइडेन एंड कमला हैरिस के रिजीम में भारत को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, इंटरनल इशू पे भी अमेरिका का स्टैंड फेवरेबल होगा भारत के लिए? और एक बड़ा इशू जो सामने आया है कुछ दिनों से, वो है वीज़ा इशू। आपने अभी अभी उठाया है, वे इशू है भारतीयों के लिए, ये बहुत सीरियस इशू है। अभी असम के युवाओं भी, उन लोगों का भी एक सपना है सामने, यूएस या फॉरेन एनी ऑफ द कंट्रीज जाके एजुकेशन के लिए या नौकरी के लिए जाना चाहते हैं। तो एक नया हॉराइजन, इसका एक नया हॉराइजन हमें चाहिए। ये खुलेगा क्या एक नया हॉराइजन?
हाँ Will it be बिल्कुल, opening up? जो अभी ट्रम्प ने H1 वीजा बंद कर दिया और अभी ट्रम्प ने एक और नया वो लॉ पास करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट पढ़ने आते हैं यहाँ पे, उनको पहले 2 साल ओपीटी 2 साल काम जॉब करने का अपॉर्चुनिटी मिलता था, उसको ओपीटी कहते थे, या 2 या 3 साल डिपेंडिंग ऑन क्या पढ़ रहे हैं आप, कैसे पढ़ रहे हैं। तो ट्रम्प ने वो भी बंद करने का लॉ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो पूरा डिस्करेज करेंगे ना, जो हमारी कम्युनिटी के लोग जो पहले अमेरिका पढ़ने आते थे मास्टर्स करने के लिए या बैचलर्स करने के लिए, उसके बाद 2 साल ओपीटी करके फिर H1 वीज़ा लेके फिर यहाँ पे काम करके यहाँ आगे अपना भविष्य निर्माण करते थे, वो ट्रम्प ने उसमें बहुत बड़ा रुकावट पैदा करी है। लेकिन बाइडन ने क्लियरली कहा है कि बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन में H1 वीज़ा को रिस्टोर करेंगे, और अगर इंडस्ट्री और बिजनेसेस को ज़्यादा वीज़ा चाहिए तो ज़्यादा वीज़ा देंगे। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, मास्टर्स करते हैं, उनको ग्रीन कार्ड मिलने में बहुत ज़्यादा ईजी होगा। तो ये तो प्रोग्राम वापस वैसे ही रीइंस्टेट होगा जैसे ओबामा के टाइम में था। ओके, एक दो पर्सनल क्वेश्चंस है। आप मुझे जितना तक जानकारी है कि गुवाहाटी का छात्रीबाड़ी का जो YWCA स्कूल है उधर से आपने मेट्रिकुलेशन किया एंड आपको स्थान भी मिला था, 19 पोजीशंस मिला था। आफ्टर दैट यू हैव जॉइंड गॉट एडमिटेड इनटू कॉटन कॉलेज। आपका शिक्षा पूरा ये जो टिल ग्रेजुएशन गुवाहाटी में ही हुआ है। उसके बाद आप कब माइग्रेट किया US? तो गुवाहाटी पढ़े, गुवाहाटी में कॉटन कॉलेज से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स किया था, और उसके बाद में मैं फिर REC त्रिची रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज त्रिचिनापल्ली, उसमें केमिकल इंजीनियरिंग करने गया था। केमिकल इंजीनियरिंग करने के 1 साल बाद मैं अमेरिका चला गया था वहाँ MBA करने के लिए, और फिर वहीं से मैंने प्राइस वाटर हाउस IBM वगैरह में काम किया, और उसके बाद में करते करते अमेरिकन पॉलिटिक्स से जुड़ गए। तो पहले मैंने ओबामा के फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में उनके साथ बहुत काम किया, और फिर हिलरी क्लिंटन को जिताने के लिए उनके कैंपेन में नेशनल लीडरशिप में काम किया। वो हम हार गए थे, तो पर ये बार 2 साल से बाइडन को Day 1 से उनके कैंपेन के साथ में जुड़े हुए हैं, और उनको जिताने के लिए उनकी नेशनल लीडरशिप टीम में मैं काम कर रहा था। आपका पिताजी का गुवाहाटी फैंसी बाजार में इलेक्ट्रिकल केबल्स का एक बिजनेस भी था, और फैमिली रिलेटिव्स भी है। डेफिनेटली आपका अभी भी फैमिली रिलेटिव्स, बहुत सारा फैमिली, मैंने सुना है कि आपका वाइफ का भी असम कनेक्शंस है, उन लोग का भी बहुत ज़्यादा रिलेटिव फैमिली मेम्बर्स गुवाहाटी में ही है। हाँ जी, मेरे पापा का गुवाहाटी में संजय इलेक्ट्रिकल्स बोल के SRCB रोड 3 नंबर गेट के पास में हनुमान जी का मंदिर है, उसके पीछे मार्केट में दुकान था। तो वहीं पे फैंसी बाजार गुवाहाटी कुमारपाड़ा में हम रहते थे, पहले नेपाली मंदिर के पास रहते थे। तो वो यादें बहुत ही अच्छी है। वहाँ पे एक न्यू फील्ड हुआ करता है, तो वहाँ हम क्रिकेट खेलते थे, और मेघदूत अप्सरा सिनेमा हॉल में मूवीज़ देखते थे। तो ये सब बहुत प्यारी यादें हैं। अभी मेरे वाइफ की छोटी बहन जो है वो गुवाहाटी में रहती हैं, और मेरे काफ़ी सारे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, वो भी अभी गुवाहाटी में रहते हैं। तो मैं आया था अभी गुवाहाटी, जब हिलरी क्लिंटन हार गई थी तो मेरा मन बहुत ख़राब हो गया था। तो तारपुर में गुवाहाटी हाई स्कूल में प्रोग्राम हुआ था, सारे टीचर्स से मिले थे, कुछ टीचर अभी भी वहाँ पर हैं, और सारे फ्रेंड्स और मिले थे। 2016 में गुवाहाटी आया था, कामाख्या मंदिर भी गया था, तो बहुत ही अच्छा लगा था मुझे गुवाहाटी। कुछ टाइम मैंने देखा गुवाहाटी ज़्यादा बदला नहीं, लेकिन बड़ा हो गया, काफ़ी बिल्डिंग्स आ गई और आ गई, लेकिन रास्ते और सड़कें, AT रोड और वो जो पल्टन बाजार और पान बाजार और सब वही लगे थे। डू यू मिस गुवाहाटी एंड असम समटाइम? गुवाहाटी का जो ये माहौल है, नेचर, नहीं, बिल्कुल याद आती है गुवाहाटी की और असम की, और बिहू डांस और दुर्गा पूजा, और जो भी जब भी ट्रेन से, कितनी बार हम ट्रेन से, दिल्ली से ट्रेन से गुवाहाटी आते हैं, तो जैसे रंगिया के पास पहुंचते हैं, गुवाहाटी की जो ब्रह्मपुत्र ब्रिज की जो गड़गड़ाहट होती थी ट्रेन से जब जाते थे, तो वो सब एक मोमेंट जो है, उस टाइम बचपन से हम गुवाहाटी में रहे हैं। तो चाहे फैंसी बाजार का हो, चाहे जहाँ भी हम लोग, उस टाइम तो एक साइकिल या स्कूटर थी, तो गुवाहाटी में घूमते थे, वो सब मोमेंट्स अभी भी याद हैं। वो चीज़ मतलब
कैसे डिस्क्राइब करें, लेकिन वो मेमोरीज इतनी प्यारी हैं कि, और लोग इतने प्यारे हैं, लोग इतने अच्छे हैं, तो यहाँ पे भी गुवाहाटी के आसाम के काफ़ी परिवार हैं, लेकिन पिछली बार जब मैं गुवाहाटी गया था तो बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने घर वापस आ गया। हमने देखा है कि जो आफ्टर रिजल्ट्स यू हैव एंजॉयड ए लॉट, आपका घर में जश्न बनाया था। मैं एक वीडियो भी दिखाना चाहता हूँ। हाँ और जी, हाँ जी। देखा है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, कुछ रिश्तेदार, इंडियन कम्युनिटी को भी आपने इनवाइट किया था। मैं एक बार वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद ये प्रोग्राम कैसे किया था, कौन कौन आया था, मैं एक बार आपसे जानना चाहूँगी। एक बार मैं वीडियो ठीक दिखाता है। हूँ। ऐसा लगा है कि यू हैव स्टार्टेड इन द आफ्टरनून एंड यू कंटिन्यू टिल लेट इवनिंग। मस्ती हुआ वो है। बहुत ही सब लोग जोश में थे, और 4 साल तक हम लोग ने हर घंटे हर दिन, मतलब ट्रम्प की जो ट्वीट्स है और ट्रम्प ने जो जो किया उससे परेशान हो गए थे लोग। तो ये, और उन्होंने बहुत मेहनत करी सभी ने जो बाइडेन को जिताने के लिए। तो ये एक खास मोमेंट था जो सब लोग सेलिब्रेट करना चाहते थे। तो हमने उस दिन ढोल और बुला के, कोविड के कारण ज़्यादा लोग नहीं बुला पाए, 30-40 लोग ही थे, तो लेकिन बहुत ही आनंद आया, खुशी हुई। And why Democratic Party? Why you have kind of chosen this party? जो हमारी वैल्यूज़ हैं, और जो मतलब इंडियन ओरिजिन से, रूट से जो हमारी वैल्यूज़ हैं, आज बाइडेन जो हैं वो अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं, अपने एल्डर्स की बहुत इज्जत करते हैं। रेस्पेक्ट और इंटीग्रिटी और वैल्यूज़ उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे छोटों के लिए, बड़ों के लिए। वो अपनी आयरिश एंसेस्टर से उनको मिले हैं, और वही वैल्यूज़ हमारे भी हैं कि अपने परिवार को हम प्यार करें, परिवार सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और बड़ों की इज्जत करें और रिस्पेक्ट करें, और अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचें, और सब। तो ये वैल्यूज़ हमें और बाइडेन को एक साथ जोड़ती है। और डेमोक्रेटिक पार्टी की जो भी वैल्यूज़ हैं कि आज इतने सारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं और कम्युनिटीज़ हैं, चाहे मैक्सिकन्स हो, ब्लैक्स हो, लैटिनोज हो, इंडियन अमेरिकन्स हो, साउथ एशियंस हो, चाइनीज़, सारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं। उनको सबको जोड़ने का जो एक यूनिटी बनाने का है, वो डेमोक्रेटिक पार्टी करती है। तो इसलिए डेमोक्रेटिक पार्टी तो शुरू से ही, मतलब इतने सालों से उनके साथ है। Our Prime Minister Narendra Modi ji, he has supported Donald Trump, and he also kind of attended the campaign program, Howdy Modi program, and the program in Gujarat also. So आपको ऐसा लगता है कि बाइडेन के साथ रिलेशन उसका ट्रम्प जैसा ही होगा, उससे अच्छा होगा या उससे खराब होगा? क्योंकि he has supported openly, वो ट्रम्प के फेवर में था, वो पब्लिकली भी उसने बोला था रैली में। नहीं, ऐसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बहुत ही मतलब विजनरी नेता हैं, और उन्होंने भारत को बहुत आगे बढ़ाया है। और जो भी देश का राष्ट्रपति होगा, मोदी जी उनके साथ अच्छे रिश्ते रखते हैं। ओबामा के साथ मोदी जी के बहुत अच्छे रिश्ते थे। ओबामा चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में, जब ओबामा के सेकेंड टर्म में मोदी जी ने उन्हें बुलाया था। और ट्रंप के साथ में मोदी जी के अच्छे रिश्ते रहे, अब बाइडेन के और कमला हैरिस के साथ में भी अच्छे रिश्ते होंगे। ये देश के हित को आगे रख के डिसीजन लिए जाते हैं, न कोई पर्सनल
फ्रेंडशिप के बेसिस पे होता है और देश के हित के लिए जो सही है वही करेंगे। सोशल मीडिया में एक दो फोटोग्राफ्स वायरल हुआ है मोदी जी का और बाइडेन का, उसमें भी देखा है कि उन लोग का पुराना जाना पहचाना है, जब मोदी हैज़ विजिटेड ओबामा के टाइम पे शायद मिला था उन लोगों ने, उसके एक आपस में उन दोनों अपने बातचीत हुआ था या सम ऑफ द प्रोग्राम्स अटेंडेड, और जो बाइडेन ने एक टाइम पे मोदी जी के बारे में बहुत अच्छा भी बोला था, ऐसा भी एक वीडियो वायरल हुआ है। बिल्कुल, जब बाइडन इंडिया गए थे और उसके बाद में काफ़ी बार बाइडन और मोदी जी मिले हैं, तो मैंने कहा था आपको कि ओबामा और बाइडन ने $500 बिलियन की ट्रेड डील की फाउंडेशन रखी थी। तो वो फाउंडेशन में जो बाइडन का बहुत इम्पोर्टेंट महत्व रोल रहा था और उन्होंने मोदी जी के साथ में काम किया था। तो उनकी फ्रेंडशिप काफ़ी उस टाइम से है और अब ये और आगे ही बढ़ेगी। आगे ही बढ़ेगी। धन्যবাদ জনাইছোঁ অজয়জী, আপুনি ইমানখিনি সময় আমাক দিলে আৰু আপুনি শেষ মুহূৰ্তত মই সামৰিম, শেষ মুহূৰ্তত অসম গুৱাহাটী, আপুনি গুৱাহাটীতে জন্ম হৈ ডাঙৰ দীঘল হোৱা অসমবাসী আৰু গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে কি ক'ব? सबसे यही कहूँगा, जॉय जॉय आय होम, सब जॉय होम। सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाला समय बहुत सबके लिए बहुत अच्छा हो और कोरोना से मुक्ति जल्दी मिले। और असम के युवाओं को मैं यही कहूँगा कि ड्रीम बिग, बड़े सपने देखें और वो मेहनत से पूरे साकार होते हैं। और भी कोई भी तरीके से मैं अगर किसी को हेल्प कर पाऊँ तो आप मेरे फेसबुक पेज है अजय जैन भुतोड़िया, उसमें मुझे कनेक्ट करके मैसेज कीजिए। कभी हो सकता है लेट हो जाए रिप्लाई करने में, लेकिन मैं रिप्लाई करूँगा और मैं आपकी कोई भी मदद कर सकूँ तो आई एम ऑलवेज देयर। आई एम अ सन ऑफ असम एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग अ सन ऑफ असम। চাউন অফ আছাম নিজকে কৈছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালৈ, পুনৰ এবাৰ অভিনন্দন জনালোঁ এই বিজয়ৰ বাবে, আপোনাৰ পত্নী পৰিয়ালবৰ্গলৈ অভিনন্দন জনালোঁ। সকলো ভাৰত তথা অসমৰ যিমান বাসিন্দা আছে তেওঁলোকে এই বিজয়ত সহায় কৰিলে, সকলোকে এবাৰ অভিনন্দন জনালোঁ। দুইজন প্ৰেছিডেণ্ট ইলেক্ট, ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট ইলেক্ট দুইজনকে অভিনন্দন জনালোঁ। আশা কৰিছোঁ অসমৰ সৈতে সংযোগ সুদৃঢ় হ'ব, ভাৰতৰ সৈতে শক্তিশালী বলিষ্ঠ সংযোগ হ'ব আমেৰিকাৰ, আৰু এই আশা ৰাখিয়ে আপোনাক এবাৰ ধন্যবাদ জনাই বিদায় দিছোঁ আৰু অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিছোঁ।